हेलो एवरीबॉडी। रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एड्रेस किया है ईरान के लोगों को। जी हां, आप सही सुन रहे हो, ईरान के लोगों को एड्रेस किया है। वैसे आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये ईरान के लोगों को कह क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं ये बताकर। क्या यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू को डर है किसी बात का, या फिर उन्हें चिंता होने लगा है सच में ईरान के लोगों के लिए? क्योंकि हाल ही हमने देखा था ईरान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, और इसका रीजन है जिस तरह का अटैक लेबनान पे किया है इजराइल ने, और जहां हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह का टॉप मोस्ट कमांडर भी मारा गया है। और कुछ दिनों पहले हमने कुछ और अपडेट्स भी सुना था कि हो सकता है ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आ गया है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है रशिया ने यहां पर हो सकता है एक सीक्रेट न्यूक्लियर डील साइन किया है ओवरऑल यहां पर ईरान के साथ में, इन एक्सचेंज ऑफ सम मिसाइल जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है मे बी यूक्रेन वॉर में, राइट। तो बहुत पॉसिबिलिटीज है इस चीज की भी, और हो सकता है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात का कहीं ना कहीं पता कर लिया है, और बेंजामिन नेतन्याहू अवॉइड करना चाहते हैं लार्जर कॉन्फ्लिक्ट। और इसका एक मेन रीजन है क्योंकि अगर ईरान के पास में ओवरऑल न्यूक्लियर वेपन है तो ये इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, राइट। तो बहुत कुछ है यहां समझने के लिए, मेनी थिंग टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्री राम्स IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्री राम्स IAS का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के लिए एक मैसेज दिया है एक वीडियो के माध्यम से। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your healthcare, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्चुअली कहा क्या है। देखो, इन्होंने सबसे पहले कहा है कि ईरान के लोग नोबल पर्सन्स है, राइट। तो आप लोग नोबल हो, आप काफी अच्छे हो, आपकी जो पर्शियन कल्चर रही है इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कल्चर, राइट। आपकी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन रही है वो ग्रेट रही है, एंड इवन हम जो पर्शियन लोग हैं और साथ में जेविस लोग हैं मिलकर एक सुनहरे कल की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं इन्होंने सबसे पहले कहा है। और फिर इसके बाद सीधा यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्वेश्चंस उठाया है ईरान के करंट रिजीम के ऊपर में, ईरान की करंट गवर्नमेंट के ऊपर में। यहां लोगों को कहा है कि देखो, आपकी जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूअसली आपको वॉर में इन्वॉल्व करके रखी है, आपको टेररिज्म में इन्वॉल्व करके रखी है, ताकि आपका जो डेवलपमेंट है वो ना हो, आपकी जो उन्नति है वो ना हो। तो ये सारी चीजों को यहां पर हाईलाइट किया गया है, और इसके साथ एक खुला धमकी भी दिया गया है यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू को कि ऐसा शायद ही कोई जगह है जहां पर
इसराइल नहीं पहुंच सकता है मिडिल ईस्ट में। और आपने रिसेंटली इस सारी चीजों को विटनेस भी किया है। आज हिजबुल्लाह के, आज हमास के बड़े बड़े लीडर्स मारे जा रहे हैं और आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो। और हम ये नहीं चाहते कि इन फ्यूचर ऐसा ईरान में भी हो, ईरान के लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। आप ग्रेटेस्ट लोग हो, आप नोबल लोग हो, आप इस चीज पे सोचो। इस तरह की कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है यहां पर ओवरऑल बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन इसके दूसरी तरफ अचानक से इस तरह का मैसेज देना बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, ये एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं? तो यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, राइट? और देखो, इसके बाद हम इसी चीज को जब दूसरे नजरिए से देखते हैं तो हमें यह भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज इजराइल नहीं चाहता है कि ये वॉर ईरान तक पहुंचे। क्योंकि इससे क्या होगा ना, क्योंकि आज के वक्त में ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ईरान के पास में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इजराइल नहीं चाहता है कि ये वॉर बहुत लार्ज स्केल पर आगे बढ़े। और क्योंकि अगर ये लार्ज स्केल तक गया तो नो डाउट, क्योंकि ईरान भी एक पावर हाउस, आप समझो ईरान कोई कमजोर कंट्री नहीं है, ईरान के पास में भी पावर है, राइट? तो यहां पर ओवरऑल ये भारी भी पड़ सकता है यहां पर इजराइल पर, और इससे जो नुकसान होगा वो दोनों ही कंट्री को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ सकता है। तो इसका जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा खतरनाक निकल के आ सकता है। और देखो, ईरान ने भी ना अपना एक अंडरग्राउंड बेस बना रखा है यहां पर, जिससे जब भी जरूरत पड़े अचानक से तो वो वहां से अटैक कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ऐसा कहा जाता है कि इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है। तो इससे कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। और कल को अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, अगर एक वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो इस केस में आप ऐसा समझ लो कि इजराइल के ऊपर में भी काफी ज्यादा यहां पर आप समझ लो नंगा तलवार लटक रहा है। क्योंकि अगर कल को अचानक से, क्योंकि इजराइल का साइज काफी छोटा है, आप एक चीज समझो, क्योंकि अगर कल को एक अटैक हो जाता है बड़ा, तो उस केस में देखो हो सकता है कि यहां पर ईरान का कुछ शहर यहां पर लेट से हम मान लेते हैं कि उस पर अटैक होगा, तो उससे नुकसान डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेगा। लेकिन अगर इजराइल पर एक भी अटैक होता है तो उससे इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं यहां पर थ्रेट में आ सकती है, इजराइल की ओवरऑल मतलब एग्जिस्टेंस थ्रेट में आ सकती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? एंड यूएस के होते हुए ऐसा हो पाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हालांकि, राइट? तो यहां पर आने वाले वक्त में जो भी डेवलपमेंट्स आएगा, बहुत कुछ होने वाला है यहां पर, राइट, मिडिल ईस्ट में। तो यू विल हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस, और उसके लिए आप श्री राम साइज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल।